Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics. In previous few months, I think in September we have already completed whole syllabus. So after that we have started to revise all the chapters. Okay. So basically we have done the numbers of the numerical questions related to the national income and related aggregates, as well as we have also discussing the theoretical part of your economics, like we have discussed the which items will be included in national income or not. Next we have discussed the chapter money, what is money, functions of money, barter system, etc. After that we have started banking. So what is the meaning of bank, commercial bank, credit creation function, or the central bank and the different functions of the central bank, as well as one topic that we have discussed in this chapter, that is qualitative and the quantitative measures, monetary policy. But this topic has been deleted from your syllabus, but it is already included in chapter excess demand and the deficient demand whenever we are talking about the fiscal policy and the monetary policy. We have already discussed. So after that we have started the aggregate demand, aggregate supply, next excess demand, excess supply, or the deficient demand, income determination, so at which point the income will be determined, full employment situation, under full employment situation, over full employment situation, multiplier, topic of the multiplier, working of the multiplier. Next we have discussed the government budget, capital receipt, revenue receipt, deficit, what is budget deficit, fiscal deficit, primary deficit and revenue deficit. Foreign exchange rate we have already discussed, depreciation of the domestic currency, appreciation of the domestic currency. Next topic we have already discussed, that is balance of payment, current account balance, capital account, deficit or surplus. We have already discussed all these chapters, as simultaneously we have also discussing the Indian economic development in basically in the offline classes. Okay, we are going through one by one chapter and summarize all the chapters, as you are also facing the different examination. You have also given the 3 RTs as well as 2 pre-board in the last few months. So some exam like pre-boards other is yet to come. So beside this, we in the videos we have also discussing the different chapters. So from the previous few classes we have started to solve the papers. Okay, so first of all we have discussed the CBSE sample paper, which is issued for the 2021 in the October 2020. We have already discussed. After that we have started the CBSE examination paper, which is already came in year 2020 for the batch 1920, and after that we have started to CBSE examination paper 2019 All India. Different sets we have also discussed. Delhi set, the paper which is came in the Delhi, we have also discussed all those. And at last we have started to solve the previous year paper at the different years. Okay, so this is not for specified for the any particular year. We have discussed different questions of the different year, 14, 15, 2008, 2009, and you know very well before 2020 the Indian economic development is in class 11 and the microeconomic is in class 12. Okay, so when we talk about the before 2020, so we are going through only the macroeconomics, because the Indian economic development was in class 11. So we are discussing only the macro part of the different years. Okay, so in today's class also we are going to discuss some different questions of the previous years. Okay, so let's get started. Okay, so let's discuss with the question. In today's class we are started with the question, that is define foreign exchange rate. So it is already came in 1 mark in 2000 All India 2014.
ओके, ऑल इंडिया 2014 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ऑल इंडिया 2014, ओके, क्वेश्चन क्या था? डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट। इट इज ऑफ 1 मार्क। 1 मार्क का ये क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन करना है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। ठीक है, सो यू नो वेरी वेल द रेट एट विच द करेंसी ऑफ द वन कंट्री इज कन्वर्टेड इनटू द अनदर करेंसी। मतलब एक कंट्री की करेंसी क्या होती है, अनदर कंट्री की करेंसी में जिस रेट से कन्वर्ट होती है उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके, so it is given here, foreign exchange rate refers to the rate at which one unit of currency of a country is exchanged with the number of unit of currency of another country. Example 60R. Okay, अब क्या कह रहा है कि foreign exchange rate is the rate at which the one unit of the any country's currency is exchanged into the any number of units of the currency in the another कंट्रीज करेंसी। ठीक है, एक कंट्री की जो करेंसी है होती है वो दूसरे कंट्री की करेंसी में किस रेट पे एक्सचेंज होती है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज का रेट एट विच वन कंट्रीज करेंसी इज एक्सचेंज इनटू अनदर कंट्रीज करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखिए, जैसे होता है कि $1 इक्वल टू 70 रुपीज, सो दिस वन इज योर फॉरेन एक्सचेंज रेट। कि जो यूएस का है वो $1 लग रहा है एंड वी हैव टू पे 70 रुपीज। मतलब उनका $1 का सामान है, उनका $1 है और हमारा 70 रुपीज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग चॉकलेट यहाँ पे खाते हैं 50 रुपीज की, 70 रुपीज की, तो हम यहाँ पे अगर 70 रुपीज देंगे तो वो उसी का $1 देंगे। ये होता है। तो एक कंट्री की जो करेंसी वो एक्सचेंज किस में होती है, अनदर कंट्री की करेंसी में, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहा है ये भी ऑल इंडिया 2014 में ही आया है। व्हाट इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट? ओके, व्हाट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is floating exchange rate? ओके, तो कह रहा है कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है। यू नो वेरी वेल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके, डिफरेंट टाइप्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम के, जिसमें हम लोग ने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, हम लोग ने पढ़ा है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, ये सारा हम लोग ने पढ़ा है। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है कि जो भी रेट डिटरमाइन होता है वो किसके थ्रू होता है, गवर्नमेंट के थ्रू। मतलब गवर्नमेंट वो डिसाइड करती है कि $1.70 होगा या $1.60 होगा और $1 विल बी 80। ओके, सो इन दिस केस गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ओके, सो आप एक लाइन में लिख सकते हो कि दिस रेट इज ऑल्सो called as floating exchange rate system. Sorry, it is already given. Flexible exchange rate system. Flexible exchange rate system. Exchange rate. अब क्यों बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। बिकॉज जो रेट होता है, द रेट इज डिटरमाइंड बाय द एक्सचेंज रेट। $1 will be 70, $1 will be 60. This rate is determined by the market forces. जो ये रेट होता है वो कौन डिटरमाइन करता है, मार्केट फोर्सेस
that is demand and supply of the foreign exchange. Demand for the foreign exchange and the supply of the foreign exchange, कि डिमांड कितनी हो रही है फॉरेन एक्सचेंज की और उसके पर्सपेक्टिव में उसकी सप्लाई कितनी हो रही है. ओके, तो आप इस पे लिख सकते हो this what is floating exchange rate? The rate at which which is determined by the market forces. That is demand for foreign exchange and supply of foreign exchange. Supply of foreign exchange. ओके, कितनी डिमांड हो रही है फॉरेन एक्सचेंज की और उस पर्सपेक्टिव से कितनी सप्लाई हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. ठीक है, तो क्या हुआ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. इसको हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं. सो ये क्या होता है? द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द एक्सचेंज रेट, यू कैन राइट ऑल्सो. सो द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस. जो रेट वो किसके थ्रू डिटरमाइंड होता है? मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिटरमाइंड होता है. दैट इज डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज. जो भी फॉरेन एक्सचेंज है उनकी किसी भी कंट्री में कितनी डिमांड है और उनकी कितनी सप्लाई हो रही है. ठीक है, उनकी कितनी सप्लाई हो रही है, उनकी कितनी डिमांड हो रही है, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम. ओके, तो ये भी इट इज ऑल्सो 1 मार्क क्वेश्चन. ये भी आपका 1 मार्क का ही क्वेश्चन था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ये कब का है क्वेश्चन? ऑल इंडिया 2014 में आया है. ऑल इंडिया 2014 एंड दिल्ली 2012. Okay, so the question is, give the meaning of the managed floating exchange rate. It is also 1 mark question. Give the meaning of managed floating exchange rate system. Exchange rate system. ओके, ये क्या है? ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको मिलेगा. इसका मतलब कह रहा है, देखिए हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और दी फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है. नेक्स्ट हमने पढ़ा व्हाट इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ दी. ओके, सो गिव द मीनिंग ऑफ मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. देखिए होता क्या है, बेसिकली हम लोग ने 3 टाइप्स के होते हैं. आपको मैंने बताया 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फिक्स पढ़ लिया. फिक्स क्या होता है कि गवर्नमेंट डिटरमाइन करती, जिसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था? गोल्ड स्टैंडर्ड पढ़ा था और ब्रेटन वुड पढ़ा था. ठीक है, नेक्स्ट हमने अभी डिस्कस किया व्हाट इज फ्लेक्सिबल. वो डिस्कस कर लिया कि जिसमें डिमांड और सप्लाई के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मैनेज फ्लोटिंग. सो मैनेज फ्लोटिंग इज द combination of fixed and flexible exchange rate system. Fixed and
फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि पहले जो है डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है, बट डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू फाइनली डिसीजन डिसाइड नहीं हो पाता है कि किस रेट से चेंज होगा। इन दैट केस द गवर्नमेंट विल इंटरवेन। गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवेन करती है, और गवर्नमेंट के थ्रू इंटरवेन कौन करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ, अगर हम लोग अपनी कंट्री की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें इंटरवेन करती है और वो डिसाइड करती है कि रेट क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग और क्या क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं, डर्टी। ठीक है, डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या बोलते हैं इसको, नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं इसको हाइब्रिड भी बोलते हैं। हाइब्रिड मींस मिक्सचर, सो इट इज द मिक्सचर ऑफ द फिक्स्ड एंड द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, इसको बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ द फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं, और इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं, और यह हाइब्रिड होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ, बिकॉज ये जो रेट है मैनेज्ड फ्लोटिंग, और इंडिया में यही प्रीवैलेंट है, मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। पहले क्या होता है कि गवर्नमेंट पहले डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती हैं कि हाँ ये $1 इक्वल टू 70 होगा, या $1 इक्वल टू 80 होगा, या 60 होगा, बट गवर्नमेंट क्या कर, बट ये रेट क्या है उनके थ्रू डिटरमाइन नहीं हो पाता है। इन दैट केस गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि सारा मनी से रिलेटेड काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री की, तो यहाँ पे फिर क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंटरवेन होता है, और द सेंट्रल बैंक, लेमैन लैंग्वेज हम लोग सिंपली सेंट्रल बैंक कह सकते हैं, तो वो डिटरमाइन करती है कि कितना रेट होगा। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो द क्वेश्चन इज हियर, दैट इज how can increase in foreign exchange, foreign direct investment affect the price of the foreign exchange? कि अगर इंक्रीज क्या हो रहा है, एफडीआई में हो रहा है। वेट अ मिनट, ये जो है ये किस ईयर का क्वेश्चन है, ये दिल्ली 2013 में आया है, दिल्ली 2013। क्वेश्चन है हाउ कैन इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जिसको बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट affect the price of the foreign exchange, affect the price of ओके, कि कैसे ये जो अगर एफडीआई में इंक्रीज होता है तो प्राइस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज कैसे अफेक्ट करती है। तो इसमें कह रहा है इंक्रीज इन एफडीआई विल रिजल्ट इन मोर सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। अगर किसी भी कंट्री में एफडीआई इंक्रीज हो रहा है, मतलब फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स सप्लाई क्या है, वो भी फॉरेन एक्सचेंज की इंक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, एफडीआई करेंगे, तो सप्लाई जो भी है फॉरेन एक्सचेंज की वो भी हमारी कंट्री में ज़्यादा होगी। सो देयरफॉर ड्यू टू एक्सेस सप्लाई द प्राइस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज विल बी द फॉल। अगर इकॉनमी में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस केस में जब आपको पता है कि कोई भी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, तब क्या हो जाएगा, जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं ना,
मार्केट में जैसे नॉर्मल मार्केट की जब हम बात करते हैं तो उसमें देखते हैं बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं, बेसिकली जो गुड्स है जो उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस फॉल कर जाती है। सेम वही प्रोसेस हम एफडीआई के साथ भी देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी फॉरेन एक्सचेंज एफडीआई की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब लोग एफडीआई बहुत ज़्यादा करने लगे किसी भी कंट्री के साथ, तो इसका क्या मतलब है, सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही एक्सेस सप्लाई होगी किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की, तो प्राइस क्या है वो ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगा, दैट इज एक्सचेंज रेट फॉल्स। फिर आपका जो एक्सचेंज रेट है वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ द एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। ठीक है, ये किसकी कंडीशन हो जाएगी, एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी की कंडीशन हो जाएगी। देखो कैसे, इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इफ इंक्रीज इन एफडीआई, अगर एफडीआई में इंक्रीज होता है सो देयर विल बी इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की भी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड व्हेन देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई, जब सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी सो देयर विल बी एक्सेस सप्लाई, इट लीड्स टू दी एक्सेस सप्लाई ऑफ दी फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज एक्सेस सप्लाई। और जब एक्सेस सप्लाई हो जाएगा सो इट विल अल्टीमेटली लीड्स टू फॉल इन द प्राइस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, फॉल इन price of foreign exchange। ओके, जैसे ही फॉल होगा प्राइस किसका, फॉल इन प्राइस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, दैट मीन्स एक्सचेंज रेट फॉल्स, एक्सचेंज रेट फॉल्स। और when there is exchange rate, when the exchange rate falls, so it ultimately leads to the appreciation of the domestic currency. Appreciation of domestic currency। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंट्री में डोमेस्टिक करेंसी की एप्रिसिएशन हो जाएगा। और एप्रिसिएशन का कंडीशन क्या होता है, यू नो वेरी वेल कि अगर एक्सचेंज रेट फर्स्ट केस में $1 इक्वल टू ₹70 है तो फॉल करने का मतलब है कि अब $1 में हम बस ₹60 में ही उन गुड्स को पा जाएंगे। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज इंक्रीज इन एफडीआई। ठीक है, एफडीआई में क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। So this question is also one mark question. Next question discuss करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन है आपका ऑल इंडिया 2013 में। ठीक है, ऑल इंडिया 2013 का ये क्वेश्चन है। Okay, so the question is saying here that how can Reserve Bank of India helping in bringing down the foreign exchange rate which is very high. Okay, how can Reserve Bank of India, how can Reserve Bank of India helps in bringing down the foreign exchange rate, bringing down
फॉरेन एक्सचेंज रेट विच इज वेरी हाई, जो क्या है बहुत ज्यादा हाई है अभी, विच इज वेरी हाई। ओके, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कैसे हेल्प करेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट को फॉल करने में, जो ऑलरेडी क्या है बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस क्या हो गई है, फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा हाई कर गया है। उस केस में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो आरबीआई है वो कैसे एक्सचेंज रेट की जो रेट है, जो एक्सचेंज रेट है उसको वो कैसे फॉल करेगा, वो कैसे हेल्प करेगा। देखिए कह रहा है सेंट्रल बैंक स्टार्ट सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इट्स रिजर्व टू इंक्रीज सप्लाई, thereby bringing down the exchange rate। सेंट्रल बैंक क्या करेगा यहाँ पे, सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई, ओके, सेंट्रल बैंक that is RBI starts to sell foreign exchange reserve to increase supply, okay, so therefore देखिए क्या होगा, जैसे ही आरबीआई सेंट्रल बैंक क्या करेगा, फॉरेन एक्सचेंज को क्या करेगा, सेल करने लगेगा। जब सेल करेगा तो क्या होगा कि सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा जनरेट होने लगेगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और जैसे ही whenever there is increase in supply, so it ultimately leads to the excess supply, and excess supply, due to excess supply there is fall in the price of the foreign exchange। प्राइस क्या होगा वो फॉरेन एक्सचेंज का, वो फॉल कर जाएगा, और जब फॉल करेगा therefore फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल्स, सॉरी एक्सचेंज रेट exchange rate falls, and there is condition of appreciation of domestic currency। appreciation of domestic currency, डोमेस्टिक करेंसी की क्या हो जाएगी, एप्रिसिएशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हो गया, सप्लाई इंक्रीज करता है तो प्राइस फॉल होता है, प्राइस फॉल करेगा तो एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, और एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सप्लाई जो कंसेप्ट है वो हमें पढ़ना नहीं है, स्टेट टू सोर्सेज ऑफ डिमांड ये भी नहीं पढ़ना है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, दैट मार्केट इन विच देयर इज परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, वो मार्केट जहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो भी फॉरेन एक्सचेंज है उनको बाय और सेल करते हैं। ठीक है, एक हमें कोई एक एरिया चाहिए जहाँ पे हम ये सारा ट्रांजेक्शन कर सकें, उस ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग एक एरिया है वही मार्केट है। देखिए कह रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट इज अ मार्केट इन विच नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड फॉर वन अनदर, जहाँ पे नेशनल करेंसीज क्या होती है, वो ट्रेड होती है, मतलब एक से एक्सचेंज होती है। ठीक है, ये आपको पता है बहुत अच्छे से, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट में हम लोग ने पढ़ा है स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट की क्या कंडीशन होती है कि जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होता है सो पेमेंट इज मेड ऑन द स्पॉट, पेमेंट हम लोग क्या करते हैं, तुरंत उसका पेमेंट करते हैं। बट फॉरवर्ड मार्केट होता है तो हम लोग क्या है, किसी के मतलब किसी भी कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन में आ जाएंगे, बट वी विल नॉट पेड एट दैट टाइम, वी विल पेड इन द
फ्यूचर, हम लोग फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी टाइम पे हम क्या करेंगे, उसका पेमेंट करेंगे। ये होता है आपका बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ द foreign exchange market. Okay, so it's all about your today's class. We will continue to solve the another questions in next class also. Thank you.